میرے دوستو، اس مختصر سی زندگی میں دنیا کی جو زندگی ہے ایک مختصر سی زندگی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اتنے جاہل ہو چکے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہتے کسے ہیں۔ ہم ایک دکان میں برسوں سے کام کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ دکان کس چیز کی ہے، دکان کسے کہتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، علم کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو دنیا کسے کہتے ہیں، دنیا کیا ہے؟ میرے دوستو، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ حضرت دنیا کیا ہے؟ حضرت نے بڑا ہی معقول جواب دیا اور برجستہ جواب دیا، اور اس طرح سے جواب دیا کہ وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ کیا فرمایا؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے۔ یہ ایک اصول بتا دیا حضرت نے۔ اس دنیا کو آپ دیکھیں، اگر وہ دنیا ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، اسلام سے دور کر رہا ہے، شریعت سے ہم دور ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیے وہ دنیا ہے، اور الدنیا ملعون، دنیا بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ میرے دوستو، دنیا ایک مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے آخرت کی امتحان کے لیے ہمیں اس روئی زمین کے اوپر بھیجا ہے، تاکہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسا کوئی عمل کریں جس سے اللہ کی ذات راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت مجھے ملے، اور جنت کی وہ جوانی اور بہشت کی وہ جوانی اور وہاں کی وہ مسرت اور وہاں کی وہ حوریں، وہ ساری چیزوں کا دار و مدار یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر آئے ہی کیوں تھے؟ آخری نبی بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس روئے زمین کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ میرے دوستو، دعوت اللہ کے لیے، یعنی پوری دنیا کی لوگ جو جہنم میں پہنچ چکے تھے، بعض لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت 13 سالہ مکے کے اندر محنت کی، اور محنت اسی کے اوپر تھی کہ تمام کے تمام لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور وہ تڑپ، وہ کڑھن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں تھی کہ کفار مکہ اور پوری دنیا کے لوگ، عالمی نبی تھے، عالمی پیمانے پہ سوچتے تھے کہ تمام لوگ اور پوری دنیا کا انسان جہنم سے بچ جائیں۔ کس طرح بچائیں گے اس کے لیے محنت کرتے تھے۔ صحابہ نے محنت کی، تابعین، طبی تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، تمام لوگوں نے محنت کی کہ دنیا کے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ میرے دوستو، ابھی کا واقعہ ہے، نیدرلینڈ کا واقعہ، کہ ایک امام صاحب اور ان کا 11 سالہ بچہ، اس کے اندر جو تڑپ ہے وہ دیکھ لیجئے آپ۔ 11 سال کا بچہ ہے اور اس کے اندر اسی طرح کی تڑپ ہے کہ جس طرح صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دلوں میں وہ تڑپ تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ وہاں پہ نیدرلینڈ کے امام صاحب ایک کتاب تقسیم کیا کرتے تھے، کتاب چاہ، اور اس کتاب کا نام ہے الطریق الی الجنہ، یعنی جنت کا راستہ۔ وہ کتاب فری میں، مفت میں، دونوں باپ بیٹے، 11 سال کا بچہ ہے۔ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور وہ 11 سال کا بچہ کپڑا پہن کر کے تاکہ ٹھنڈی کا احساس نہ ہو اور نکل پڑے۔ ابو سے کہا چلیے، ان کے والد صاحب نے کہا بیٹا بہت ٹھنڈ ہے باہر، ہوائیں چل رہی ہے۔
उस बच्चे ने जो जुमला कहा अब्बा जान आप ये कह रहे हैं कि हवाएं चल रही है, आप ये कह रहे हैं कि बाहर मौसम सर्द है, जबकि इंसान जहन्नम के किनारे पे खड़े हैं। हो सकता है कि मेरी वजह से वो जहन्नम के किनारे से निकलकर जन्नत के रास्ते के ऊपर आ जाए। वो 11 साल का बच्चा कह रहा है। काश के आज हमारे बच्चों को देखिए, गलियों में लाउबालीपन की तरह खरमस्तियां करते रहते हैं। न कोई शोर है, न कोई तरतीब है, न माँ बाप को एहसास है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और उनके सीनों के अंदर क्या लावा फूट रहा है। वो 11 साल का बच्चा नीदरलैंड के इमाम साहब खुद बयान कर रहे हैं। वो बच्चा किताबचा लेकर के बारिश के मौसम में निकल पड़े। अपने गलियों में अब्बू से कहा मैं तो गलियों में फिरूंगा, कहीं दूर जाना नहीं है, इस सारा किताब में तकसीम कर दूंगा, कोई एक आदमी तो उसे पढ़ेगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं लोगों से कह रहा हूं कि इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरे सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन लोगों को देखिए सुनते नहीं हैं, और अगर सुन लिए तो लाइक भी नहीं करते हैं। ये नहीं कि आगे हम भेजने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, दीन कोने कोने तक पहुंच जाए और जिस तरह भी पहुंचे उसे पहुंचाने की आप कोशिश करें। उस बच्चे को देखिए, मौसम सर्द है और गलियों में निकल पड़े हैं, किताबचा तकसीम कर रहा है। तकसीम करते करते एक किताब उनके हाथों में है, आखिरी किताब, और वो बच्चा इधर से उधर देख रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। शहर बिल्कुल खामोश है, सर्द हवाओं की वजह से, सर्द मौसम की वजह से, तूफानी बारिश की वजह से। वो बच्चा भीगता हुआ मासूम चेहरा है और उनके दिलों के अंदर ये तड़प है किस तरह लोग जहन्नम के किनारे से निकलकर जन्नत के रास्ते के ऊपर आ जाएं। भूतों के जो पूजा कर रहे हैं वहां से निकलकर बातिल परस्त के अंदर जो लगे हुए हैं, गुमराहियत में जो पड़े हुए हैं, वहां से निकलकर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन में आ जाए। वो 11 साल की बच्चा, उनका सोच ये है, उनकी दिल की तड़प और कैफियत ये है। वो बच्चा वो आखिरी किताब लेकर के इधर उधर दौड़ रहे, एक छोटा सा घर नजर आया, उस घर के ऊपर जाकर के दरवाजा खटखटा रहा है। एक मर्तबा खटखटाया, छोड़ दिया, दूसरी मर्तबा खटखटाया, छोड़ दिया, तीसरी मर्तबा, लेकिन वापस नहीं हो रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरह ये किताबचा, जो किताब का नाम है अत-तरीक़ इलल जन्नह, ये किताब उन तक पहुंच जाए और वो पढ़ें, शायद अल्लाह उनको हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, वो बच्चा उस दरवाजे के ऊपर खटखटाता रहा। एक नौजवान औरत, अधेड़ उम्र की औरत, वो ऊपर से नीचे आई, दरवाजा खोला और ये देखा एक चांद जैसा बच्चा है और उसके मुस्कुराहट और उनकी चमक को देख करके वो बच्चा कह रहा है कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। अल्लाह ने, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बच्चा कह रहा है उस औरत से, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह आपसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप ये किताबचा रख लीजिए, इससे जरूर पढ़िएगा। वो दे करके वापस हो गया बच्चा और वो औरत जा करके पढ़ने लगी उसको। दूसरी जुमा में उसी पते के ऊपर, जो किताब के अंदर पता लिखा हुआ था, एड्रेस, उसी एड्रेस के जरिए से उस मस्जिद में पहुंची वो औरत। जुमा का खुतबा हो चुका था, पूरी मस्जिद भरी हुई थी, ताजा तरीन वाकया है, हैरत अंगेज वाकया, दिलों को चीर देने वाला वाकया है ये। वह औरत वहां मस्जिद पहुंची, खुतबा खत्म हो चुका था और वह औरत खड़ी हो गई, पूरे मजमे को खिताब करते हुए कहा कि मैं मुसलमान, गुज़िश्ता जुमा मुसलमान नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने अब मुझे हिदायत दी, मैं उस बच्चे की शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूं। और जिस दिन वो बच्चा मेरे घर पे आया था, मैं फांसी के फंदे के ऊपर लटकने वाली थी, क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था और जीने का कोई सहारा नहीं था। लेकिन जिस दिन वो बच्चा आया और ये किताब मेरे हवाले किया, मुझे जीने का सहारा मिल गया।
कौन कह रहे हैं? वो औरत कह रही है, वो उस बच्चे का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूं मैं कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, और वो कलमा पढ़ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो औरत पढ़ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस बच्चे की वजह से जहन्नम से बचा लिया। अगर मैं उस दिन खुदकुशी कर लेती, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलती रहती। मेरे दोस्तों, उस बच्चे का शुक्रिया अदा करने के लिए वो औरत आई थी और ज़ारो कतार रो रही थी। पूरा मजमा मस्जिद के अंदर रो रहा था। खुद उस बच्चे का बाप मेंबर से उतरा और बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अगर तुम उस दिन नहीं जाते तो ये औरत मर चुकी होती है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाती। आज पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये बताने की जरूरत है कि मेरा जो खुदा है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बताने की जरूरत है लोगों को, ताकि लोग अमाल के ऊपर आ जाएं और उसकी दिलों के अंदर वही तड़प जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलों के अंदर थी। उड़ते रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमेशा ये चाहते थे किस तरह लोग जहन्नम से बच जाएं। आज पूरी मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि दीन उन तक पहुंचाएं, इस्लाम उन तक पहुंचाएं और उसका जो सही मीनिंग है वो मीनिंग उनको बताएं, ताकि वो भूतों से बाज आ जाए, उनकी परस्तिश से बाज आ जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाए। मुझे उस बच्चे के हैरत अंगेज जवाब जो बाप से कहा कि अब्बा जान, पूरी दुनिया के लोग जहन्नम की तरफ दौड़ रहे हैं और हम यहां बैठे हुए हैं, बारिश का छूटने का इंतजार कर रहे हैं, तूफान की छूटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं। और इस तरह की वाकया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर भी लिखे हैं कि जब जहन्नमी जहन्नम में चली जाएंगे और जन्नती जन्नत में चली जाएंगे और वहां पे जहन्नम के अंदर सिफारिश का मामला चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, उलमाए किराम सिफारिश करेंगे, शुहदा सुलहा और इस तरह औलिया किराम सिफारिश करेंगे, अल्लाह की रहमत होगी, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। लेकिन जिनके दिलों के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे ही। जिनका ईमान जर्रे से कम होगा वो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और जहन्नम के अंदर जहन्नमी उसको ताना देंगे, तुम तो दुनिया के अंदर मुसलमान बने फिरते थे और कहते थे हम तो बहुत बड़े चौधरी हैं मुसलमानों के, और इस तरह बड़े बड़े टोपी और बड़े बड़े जुब्बा पहन करके टहरा करते थे। आज जहन्नम में कैसे? हम तो मुसलमान नहीं थे, हम तो ईमान से महरूम थे, हम तो भूतों की परस्तिश करते थे, लेकिन तुम जहन्नम में कैसे? आड़ देंगे। और ये मुसलमान जो जहन्नम में होगा चीखेगा, चिल्लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को भेजेंगे। एक लंबा हदीस है अहयाउल उलूम के अंदर, और फिर वहां पे आकर के हज़रत जिब्राइल अल्लाह से बताएंगे कि ये लोग आड़ दिला रहे हैं कुफार और मुशरिकीन, मुसलमान जो जहन्नम के अंदर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इनायत और रहमत होगी और फरमाएंगे कि इनको भी वहां से निकाल लो। लेकिन निकालेंगे तो पूरे बदन सियाह हो चुका होगा, चेहरे सियाह हो चुके होंगे, और एक जगह लेकर के जाएंगे और वहां पे एक तालाब होगा। इक़्तसिल फी हादल गनीम, फरमाएंगे इस तालाब के अंदर डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते ही वो बिल्कुल खूबसूरत नौजवान बन जाएंगे, 25 साल 30 साल का नौजवान, और उसके बाद उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे और उसके माथे के ऊपर लिखा होगा रहमान, ये रियायती पास हो गया है। ये जन्नत के काबिल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रियायत कर दी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं और फरमा रहे हैं, काश के अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी औकातुर रहमान के अंदर दाखिल करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दें। और वहां जन्नती लोग भी कहेंगे, हम लोग तो अव्वल मरहले में जन्नत के अंदर दाखिल हो गए, तुम कहां रह गए थे? तुम्हारे माथे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि तुम रियायतन पास कर दिए गए हो।
मेरे दोस्तों, हम दुनिया के अंदर इतनी मेहनत करें तो कम अज कम वो रियायती जो पास हुए हैं उसमें भी तो शामिल हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मसला यहाँ है कि लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आमाल कर रहे हैं जिससे मालूम नहीं होता है कि वो मुसलमान है। मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी है, बस मुझे आपसे गुजारिश ये है कि आप इनको सुने और आप अपने दिलों के अंदर उसी 11 साल बच्चे के तरह अपने दिलों के अंदर तड़प पैदा करें कि पूरी दुनिया के लोग जो जहन्नम के किनारे के ऊपर है वहां से बच करके जन्नत के अंदर आ जाएं, जन्नत के रास्ते के ऊपर आ जाएं। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं और जहां तक आपसे हो सके पूरी सलाहियत लगा दें कि दीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमावे।